Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. सो फ्रेंड्स अभी तक जितने भी हमें एग्ज़ाम पेपर्स मिले छत्तीसगढ़ सीरीज़ के वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं एंड फ्रॉम टुडेज़ वीडियो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर ऑफ छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज। तुमने लास्ट 23 ईयर्स ऑफ छत्तीसगढ़ जुडिशरी के सारे पेपर्स ईयर वाइज डिस्कस कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एविडेंस एक्ट फ्रॉम द ईयर 2003 टू 2022। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी। So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं। मिनिमम इज़ 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम इज़ रुपीज़ 10,000। सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स। नेक्स्ट 90 एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज डॉक्यूमेंट। यस, बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 3 देखिए इसके लिए इंटरप्रिटेशंस। Next 91, A is tried for the murder of B by poison. The fact that before death of B, A procured poison similar of that which was administered to B is relevant. B is the answer. ये क्या दिखाता है? उसकी प्रिपरेशन दिखाता है। सेक्शन है 8 and this is illustration C of section 8. Next 92, in which section of Indian Evidence Act special provision is mentioned regarding evidence relating to electronic evidence? That is 65A. C is the answer. Next 93, A sells B a horse verbally and warrants him sound. A gives a paper in these words bought from a horse for rupees 500. Whether B can prove the verbal warranty? Yes, he may prove that. A is the answer and this is section 92 and this is illustration G. Next 94, A prosecutes B for theft and wishes the court to believe that B admitted this theft to C. Who must prove the admission? A को प्रूव करना पड़ेगा ऑब्वियसली। A प्रूव करेगा। A is the answer. Next 95, under which provision of Indian Evidence Act court shall presume regarding dowry that is section 113B. C is the answer. 113 A में क्या है? Presumption as to abatement to suicide. Next 96, dumb witness may give his evidence by writing or sign in open court. Such evidence shall be deemed to be oral evidence. B is the answer. Dumb witness section 119 Evidence Act में. Next 97, in a trial of murder, rape, डकैती, number of witnesses required 10, 8 and 6 respectively. देखिए repeat question है ये. No particular number of witnesses required. D is the answer. Section 134 Evidence Act. Next 98, if any advocate asks question without reasonable ground, what procedure court should adopt? The court will not dictate them. A is the answer. Section कौन सा है? 150 of Evidence Act. Next 99, under which provision a witness can refresh his memory? Section 159, बहुत ही common question है. B is the answer. Next 100, A sculptor agrees to sell B all my molds. A has both models and tools. Whether evidence can be adduced to show his intention? Yes, A is the answer. प्रोविजन का है सेक्शन 98 और ये उसका इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट 47, फॉर प्रूविंग एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड विल एट लीस्ट वन विटनेस बी रिक्वायर्ड। सेक्शन कौन सा है? 68 ऑफ एविडेंस एक्ट। अगेन रिपीट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा 2008 वाला पेपर उठा के पूछा हुआ है 2004 में। नेक्स्ट 48, अनलेस नॉन एक्सेस इज प्रूव्ड the presumption as to legitimacy of any child born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man is irrevocable presumption of law. D is the answer. Section कौन सा है? 112 Evidence Act. Next 49, admissions are conclusive proof नहीं होंगे but may operate as estoppel. B is the answer. कहाँ मेंशन किया गया? Section 31 Evidence Act में.
Next 50. A is charged traveling on railway without ticket. The burden of proving that he had a ticket is on A only. Again repeat question है ये. सेक्शन कौन सा लगेगा? 106 रेस इप्सा लोकेटोर. लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ये. Next 51. A document is said to be in handwriting of A. That document is produced from the proper custody, and if document is purporting or proved to be 30 years old, the court may presume that it is in A's handwriting. सेक्शन कौन सा लगेगा? 90. रिपीट क्वेश्चन है, 2008 के पेपर में हमने डिस्कस किया था. बहुत सारे भी ऐसे ही हैं इसमें. Next 52. What number of witness will be required for a proof of any fact? No particular number. Section 134 Evidence Act provides that. Next 53. Leading question may be asked in cross examination. Again repeat question है. सेक्शन कौन सा लगेगा? 143. लीडिंग क्वेश्चन कहाँ डिफाइन किया गया? 141 में. Next 54. Which of the following statement is correct? Estoppel is not a rule of evidence. It is a rule of evidence. ये गलत है. Estoppel form record constitutes bar of res judicata. There can be estoppel on the point of law. No, there cannot be on point of law. Estoppel नहीं हो सकता. फिर there can be no estoppel when the truth of the matter is known to the both parties. ये बिल्कुल ठीक है. I would say अब इसमें जो है ना, ये बी ठीक है और डी ठीक है, तो दो ठीक हो गए. एस्टोपल तब लगेगा जब एक पार्टी उससे अनजान है, उसने एक्ट कर दिया है और दूसरी पार्टी को पता है कि वो क्या करवा रहा है. एस्टोपल कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 115, 16 एंड 17 में. Next 55. The question is whether A committed a crime at Kolkata on a certain day. The fact that on that day A was at Chennai is relevant. बिल्कुल ठीक है ये. As introductory of the fact and issue, या फिर motive, या फिर it makes the existence of the fact highly improbable. D is the answer. Section कौन सा लगेगा? 11 Evidence Act. Next 56. A person summoned to produce a document, when produces the document, then he becomes a witness? No, he does not become witness and cannot be cross-examined unless and until he is called as witness. D इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा लगेगा? 139 Evidence Act. Again repeat question, लास्ट वीडियो में हमने किया था डिस्कस. Next 57. The examination after cross-examination of a witness by the party who has called him is called as re-examination. C is the answer. Section 138 provides the order of examination. एंड ये एग्जामिनेशन के बारे में प्रोवाइड किया गया सेक्शन 137 में. नेक्स्ट 6. व्हाट सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट? क्या ओरल स्टेटमेंट होगा? नो. सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं डॉक्यूमेंट की. बी इज द आंसर. दैट इज अ सेकेंडरी एविडेंस. सेक्शन कौन सा है? 63 ऑफ एविडेंस एक्ट. Next 10. When court may presume about execution of document produced from proper custody when the document is 30 year old. C is the answer. सेक्शन है ये 90 Evidence Act. presumption है डॉक्यूमेंट पर. Next 11. Which of the following is not correct? अब not correct पूछा हुआ इसमें. तो A है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रीवियस स्टेटमेंट कर सकते हैं. रीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन. यह बिल्कुल ठीक है. ये है 143. स्टेटमेंट ए है. सेक्शन 145. फिर विटनेस समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट कैन बी ए क्रॉस एग्जामिन. नो, ये नहीं कर सकते. सेक्शन है 139. विद परमिशन ऑफ द कोर्ट विटनेस कैन बी क्रॉस एग्जामिन बाय द पार्टी कॉलिंग इट. यस, ये है सेक्शन 154. तो इसमें गलत कौन सा हो गया? फिर सी इज द आंसर. नेक्स्ट 12. फॉर प्रूविंग एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड विल, तो क्या चाहिए? एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस हैज टू बी एग्जामिन्ड. बी इसका आंसर रहेगा. बिकॉज विल के केस में हमेशा एक विटनेस तो चाहिए होता है. सेक्शन कौन सा? ये है सेक्शन 68. और वहां पर लिखा हुआ है कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड है उसको उसके लिए जो है विटनेस बुलाने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट विल के केस में हमेशा एक विटनेस चाहिए ही चाहिए. नेक्स्ट 13. लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन. सेक्शन है 143. लीडिंग क्वेश्चन कब मेंशन किया गया है? 141. Next 62. A is charged of traveling in a train without ticket. The burden of proving that A had a ticket is on A. Obviously C is the answer. Section कौन सा? 106. Res ipsa loquitur. सुना है ये? Things speaks for itself. Next 89. Confession, if otherwise relevant, is relevant even when made under a promise of secrecy. Accused drunken state. Accused not informed all his right regarding confession. All of the above. All of the above रहेगा. D is the answer.
Next 94, confessional statement of the accused in custody when admissible, when it leads to discovery of a fact. C is the answer. Section 27 Evidence Act. Next 31, under section 3 of Evidence Act, court does not include जज होंगे, मैजिस्ट्रेट होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, आर्बिट्रेटर नहीं होता. 3 इसका आंसर रहेगा. सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन इसमें मेंशन ही किया गया है. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है आर्बिट्रेटर वाला. तो नेक्स्ट 32, एज पर सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872. 20 का आंसर है. एंड ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया था? सर जेम्स स्टीफन. Next 33, एविडेंस एक्ट कंसिस्ट ऑफ 11 चैप्टर्स एंड 167 सेक्शंस. ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 34, इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिंसिपल ऑफ रेसिस्टाई इज कोडिफाइड अंडर सेक्शन 6. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है. 6 इज आंसर. अब व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टाई? उसके लिए आप जो है कंसेप्चुअल वीडियोस जो है उसको रेफर कीजिए, बिकॉज कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ सेक्शन 6 से बता दिया कि सेक्शन 6 में है रेसिस्टाई, बट उसका कंसेप्ट नहीं बताया. कंसेप्ट बताने के लिए है हमारे पास इस वीडियो में टाइम नहीं है, बिकॉज इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं. 35, A is tried for the murder of B by administering potassium cyanide. The fact that A had purchased potassium cyanide just before the murder of B is relevant under section 8. Preparation, conduct, motive. प्रिपरेशन दिखाता ना भी, उससे पहले से खरीदा है, मतलब ने प्रिपरेशन की है. 8 में फॉल कर जाएगा. 20 का आंसर है. नेक्स्ट 36, इन विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट दोज कंडीशन आर मेंशन व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट. ये है सेक्शन 11. ए इज द आंसर. प्ली ऑफ एलिबाई, इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स, सेक्शन 11 में है. नेक्स्ट 37, इन एविडेंस एक्ट कन्फेशन इज डिफाइंड अंडर. कन्फेशन कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है. डी इसका आंसर रहेगा. नन ऑफ दी अबव. नेक्स्ट 38, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन? इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस बट मे ऑपरेट एज एस्टॉपल. ये हमने डिस्कस किया था 2016 के क्वेश्चन पेपर में. एंड सेक्शन कौन सा है, प्रोविजन कहाँ पर है, ये मेंशन करता है ये चीज़. इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 31. वहाँ पर लिखा हुआ है एविडेंस जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते बट मे ऑपरेट एज एस्टॉपल. और ये चीज़ कहाँ लिखी हुई? सेक्शन 31 में. इसका आंसर क्या रहेगा? सी, एज एस्टॉपल. एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? एज एस्टॉपल यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट 39, इन विच चैप्टर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोविजन रिगार्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ आर कोडिफाइड? चैप्टर है ये 7. डी इज द आंसर. तो चैप्टर्स भी ध्यान से कर लीजिए, चैप्टर भी पूछ रहे हैं, देख लो. नेक्स्ट 40, एविडेंस गिवन बाय डम विटनेस अकॉर्डिंग टू 119 शैल बी ट्रीटेड टू बी ओरल एविडेंस. ए इज द आंसर. सेक्शन बता ही दिया. अब आ गया एविडेंस. क्वेश्चन नंबर 25, विच इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स ऑफ फॉरेन कंट्री. ये होते हैं ट्राइब्यूनल, यस. कॉमनवेल्थ, यस. रिकॉर्ड ऑफ विल रिटन बाय गवर्नर ऑफ अ स्टेट, वो नहीं रहेगा. 4 इसका आंसर है. नेक्स्ट 26, सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्रिएट्स प्रिजम्पशन एज अ डॉक्यूमेंट दैट आर 30 ईयर्स ओल्ड. 2 इज द आंसर. एंड 90A जो है दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. ठीक है, कि उसमें प्रिजम्पशन कितने साल की है? 5 ईयर्स की. सेक्शन कौन सा है? 90A. नेक्स्ट 27, हाउ मैनी मिनिमम नंबर्स ऑफ विटनेस आर रिक्वायर्ड टू प्रूफ एनी फैक्ट? नो पर्टिकुलर नंबर. 1 इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है? 134. नेक्स्ट 28, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 23 ऑफ एविडेंस एक्ट? सेक्शन 23 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या कहता है? एडमिशन इन सिविल केसेस. तो सेक्शन 23 में एक्सप्लेनेशन में जो लिखा हुआ है, क्या नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जाम्प्ट एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी, वकील फॉर गिविंग एविडेंस इन एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सेक्शन 126. तो ये एक्सेप्शन किसकी हो गई फिर? सेक्शन 126 की. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एन एविडेंस गिवन बाय डम विटनेस इन ओपन कोर्ट इज एन ओरल एविडेंस. 2 इज द आंसर. सेक्शन कौन सा लगेगा? 119 of Evidence Act. Next 30, presumption as to absence of consent in certain prosecution of rape cases is raised by 114A of Evidence Act.
ये प्रोविज़न ऐड किया गया था कब? 1983 में, जब वो एक केस आया था मथुरा रेप केस, तुकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, तो इस केस के बाद इस सेक्शन को जो है ऐड किया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1989। ऐड कर दिया 83 में, बट इफेक्ट कब से स्टार्ट हुआ था? 89 से। नेक्स्ट 31 विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? In cross examination, witness may be asked questions which tend to discover what the position in life. ये बिल्कुल ठीक है. May be asked question which tend to test veracity. Yes. Witness to character shall not be re-examined. ये गलत है. In cross examination, witness may be asked a question which tend to discover who he is. Yes. गलत क्या हुआ इसमें? 3. क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछते हैं हम? लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सेक्शन कौन सा है? 142. नेक्स्ट 32. Which of the following statement is correct with respect to an accomplice? An accomplice shall not be competent witness. गलत है. Be competent witness against an accused. Yes, बिल्कुल ठीक है ये. No conviction shall be based on the uncorroborated testimony of an accomplice. ये गलत है. अगर वो केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करता है कि भी ऐसी टेस्टिमनी जो उस पर जो कोर्ट रिलाई कर सकती है और सारे फैक्टर सर्कमस्टांसेस से वो मैच कर रही है, तो अनकोरोबरेटेड से भी हम जो है कन्विक्शन कर सकते हैं. फिर है कंप्लीट टेस्टिमनी शैल ऑलवेज बी कोरोबरेटेड. ज़रूरी नहीं है, बट इज ओनली ए प्रिजम्पशन. आंसर क्या रहेगा? 2. अकम्प्लिस के बारे में कहाँ पर दिया गया? सेक्शन 133 में. नेक्स्ट है 88. एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स ऑक्यूलर एविडेंस बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट ओनली. डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑक्यूलर, बोथ ऑक्यूलर एंड डॉक्यूमेंट्री एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. 4 इज द आंसर. और कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में. नेक्स्ट 60. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एविडेंस? तो स्टेटमेंट ऑफ विटनेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट. एफिडेविट इज नॉट एन एविडेंस. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 61. टेस्टिमनी ऑफ हॉस्टाइल विटनेस इज टू बी कंसिडर्ड विद कॉशन एंड टू बी कोरोबरेटेड. 4 इज द आंसर. एंड हॉस्टाइल विटनेस का प्रोविजन कहाँ पर है? सेक्शन 154 में. Next 62. Which of the following is true about FIR? It is not a substantive evidence. Yes. Primary evidence, documentary, सब गलत है. 1 इसका आंसर रहेगा. FIR की बात कहाँ पर की गई है? सेक्शन 154 में बताया गया है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो देनी है, बट ये कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है. ये सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट 63. एडमिशन इज अ कंक्लूसिव प्रूफ है. नो. एस्टोपल है. नो. नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट मे ऑपरेट एज एस्टोपल. 3 इज द आंसर. बिल्कुल ठीक है. 3 इसका आंसर रहेगा. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 31 में लिखा गया है ये चीज़. नेक्स्ट 64. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज वाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड? दैट वाज पोलिंस्की वर्सेज कोंडे नेस्ट पब्लिकेशन. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 65. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इज द कैरेक्टर ऑफ पर्सन रेलेवेंट? सिविल केसेज में होगा. यस. क्रिमिनल में भी होगा. बोथ हो जाएगा इसका आंसर. यहाँ बोथ भी लिखते तब भी आंसर ठीक था, या फिर 1 और 2 लिख देते तब भी ठीक था. 4 इसका आंसर है. सेक्शन कौन सा है? 53, 54. नेक्स्ट 66. इन विच द प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाज एडिड? 65A and B बोथ. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 67. इन इलेक्शन पिटीशन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु चैलेंज द इलेक्शन. 2 इज द आंसर. Next 68. What does section 113B of Evidence Act deals with? It deals with dowry death presumption. Presumption भी लिखना चाहिए. Presumption as to dowry death. Dowry death का provision नहीं है, but presumption है इसमें. 3 इसका आंसर रहेगा. Next 69. Select the most appropriate statement. Child born during the marriage is a conclusive proof of legitimacy. Statement तो ये ठीक है, but अधूरी है. Child born during marriage may be presumed as legitimate child. May be presumed नहीं है, conclusive proof है. फिर चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग मैरिज शैल बी कंसिडर्ड एज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी अनलेस रिबटेड. ये है कंप्लीट स्टेटमेंट. 3 इसका आंसर रहेगा. फिर 4. नो प्रिजम्पशन विल बी ड्रॉन अबाउट अ चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग मैरिज. ये गलत है. एंड ये प्रोविजन कहाँ पर है? ये है प्रोविजन सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट में. ऑल राइट.
नेक्स्ट 35 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट रिलेटिंग टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टाई। इतना कॉमन क्वेश्चन है, यूपी में भी पूछा गया था। तो देखिए कितने क्वेश्चन आ गए, रिपीट क्वेश्चन हैं जो एक पेपर से दूसरे पेपर में लिए हुए हैं। 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 36 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट एविडेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट। दैट इज एफिडेविट नहीं है, बाकी सब है। 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 37 कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड इज कंसिडर्ड एज अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस नॉट स्ट्रॉन्ग। तो 2 इसका आंसर रहेगा। दिस इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। एविडेंस तो है बट वीक टाइप है, तो उसका कोरोबरेशन करते हैं। कोरोबरेशन इज नेसेसरी इन दिस टाइप ऑफ केसेस। Next 38 which of the following statement is not correct? Fact of which judicial notice have been taken need not to be proved। बिल्कुल ठीक है। सेक्शन है ये 56। कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इन सिविल केसेस इज नॉट रेलिवेंट। कंडक्ट रेलिवेंट है। कितने में प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 52 में। एक्सपर्ट ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन कोर्ट। ये बाइंडिंग नहीं होता, ये इनकरेक्ट है। इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। यस, ये ठीक है। ये 53। तो आंसर क्या हो गया इसका? 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 39 प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ हैज बीन प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट। 113B1 इज द आंसर। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, यूपी में पूछा गया है ये वाला। वहाँ पर 113A पूछ लिया। 113 का रेफरेंस भी दिया हुआ डाउरी डेथ कौन से में मैचिंग में, उसमें पूछा गया था कि कौन सा ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से इस पेपर से लिए गए हैं, थोड़ा चेंज करके उसको एक क्वेश्चन बना दिया। नेक्स्ट है 40 विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल क्लियरली फ्रेम्ड। दैट वाज पिकर्ट वर्सेस सीयर्स। 4 इज द आंसर। और एविडेंस एक्ट में कहाँ पर प्रोवाइड किया गया? एस्टॉपल 115। Next 41 a client says to be an attorney, I wish to obtain a possession of property by use of forged deed on which I request you to sue। और सेक्शन 126 एविडेंस एक्ट व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ दिस कम्युनिकेशन। क्या ये प्रोटेक्टेड है? नो। अगर काम करने के बाद, अपराध करने के बाद अगर आपके पास आता है कोई एज ए प्रोफेशनल एडवाइस लेने के लिए, तो वो प्रोटेक्टेड है। दैट इज कॉल्ड एज प्रिविलेज कम्युनिकेशन। ठीक है, बट दिस इज नॉट अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। 2 इसका आंसर रहेगा। सेक्शन 126 में ही मेंशन किया गया है ये। नेक्स्ट 42 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज द सुप्रीम कोर्ट समराइज्ड एंड reiterated the rule of inadmissibility of confession made to police officer in police custody। It is Indra Dalal versus State of Haryana। 3 is the answer। Next is 43 which of the following statement is correct? Minimum 2 witnesses are required। No particular number of witnesses is required for proof of any fact। सेक्शन कौन सा है? 134। ये भी पूछा गया यूपी में, यूपी 2018 के पेपर में। कितने क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से और वहाँ पर। नेक्स्ट 44 रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन राजू देवाड़े उसी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र डील्स विद डाइंग डिक्लेरेशन। 1 इसका आंसर रहेगा। मृत्युकाली कथन। Next 45 when the court gives a decision in ignorance of a statute or rule having statutory effect, such decision is termed as per incuriam। 2 इसका आंसर रहेगा। इन पर्सोनम का मतलब क्या होता है? प्राइवेट राइट ऑफ पार्टी। सब इन रैम जनरल पब्लिक। सब साइलेंटो मतलब इन साइलेंस या फिर अंडर साइलेंस। मतलब किसी चीज़ पर अगर कोर्ट साइलेंट है, कुछ नहीं बताया गया, नहीं बोला गया, तो क्या होता है? सब साइलेंटो। नेक्स्ट 31 ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी इंटेंसली बीटिंग। इंटेंशनली होगा यहाँ पर ही। इंटेंशनली बीटिंग इन विद द क्लब कॉजिंग इज डेथ। विच द फॉलोइंग फैक्ट आर इन इशू? ए बीटिंग विद क्लब, ए कॉजिंग बी इज डेथ बाय सच बीटिंग। ब्रीदिंग नहीं है, ये बीटिंग होगा। ए इज इंटेंशन टू कॉज बी इज डेथ। ऑल ऑफ द अबव। 4 इसका आंसर रहेगा। फैक्ट इन इशू के बारे में बताया गया। सेक्शन कौन सा है? 3 इंटरप्रिटेशंस इन एविडेंस एक्ट।
Next 32, A desires a court to give judgment that he is entitled to certain land in possession of B or basis of certain fact, which B denies to be true under section 101 of Evidence Act. तो क्या होगा, ए चाहता है कि भाई उसके फेवर में जजमेंट आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, उसी को प्रूव करना पड़ेगा ना, ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट। 3 इसका आंसर रहेगा। तो एज पर सेक्शन 101 ऑफ एविडेंस एक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, हु अफर्म्स द फैक्ट। Next 33, relevant fact to consider a statement under section 32 are when if relates to cause of death, yes, existence of relationship, yes, made in a will or in deed relating to family affairs, yes, if family है, family नहीं है, तो all of the above इसका आंसर रहेगा 4। Next 34, essential requirement for application of section 27 Evidence Act are person giving information must be an accused of an offense, yes, in police custody, yes, he may or may not be in police custody। ये गलत है, तो बाकी दो ठीक हैं, ए एंड बी बोथ आर दी आंसर। 4 इसका आंसर रहेगा सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट। Next 35, when court is to form an opinion regarding electronic signature, then opinion of certifying authority who issued electronic signature is relevant to इसका आंसर रहेगा। एंड इसका प्रोविजन कहाँ प्रोवाइड किया गया है, ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 47A ऑफ एविडेंस एक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट 36, व्हेन एनी फैक्ट, फाइट लिखती है यहाँ पे, फैक्ट है, इज स्पेशली इन द नॉलेज ऑफ एक्यूज, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट इज अपॉन द एक्यूज सेल्फ। स्पेशल नॉलेज सेक्शन 106, रेस इप्सा लोकिटोर, यही पूछते हैं कि सेक्शन कौन सा है इस मैगजीम का, इसका मीनिंग क्या है मैगजीम का, मैगजीम का मीनिंग क्या है, थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन भी पूछते हैं, जो ए ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, सो बर्डन किस पे है कि उसके पास टिकट है या नहीं है, ए के ऊपर है। ऑलराइट, नेक्स्ट 37, हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट ईच अदर इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। 1 इसका आंसर रहेगा। प्रोविजन कहाँ पर है, एविडेंस एक्ट में, दैट इज सेक्शन 120 ऑफ एविडेंस एक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट 38, प्रिजम्पशन एज टू डॉवरी डेथ, ये देखिए ए नहीं आएगा यहाँ पर, प्रोवाइडेड इन सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। डायरेक्ट प्रोविजन से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 39, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला केस लॉ रिलेटेड टू कंडक्ट। 1 इज द आंसर, कंडक्ट से रिलेटेड है ये, तो 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वेदर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइड किया गया सेक्शन 74 ऑफ एविडेंस एक्ट में। अब एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ, एक्ट्स ऑफ सोवरेन अथॉरिटी, ठीक है, फिर पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट इन स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ये भी ठीक है, बोथ इसका आंसर रहेगा। प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहाँ मेंशन किया गया, 75 ऑफ एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट 25, व्हाट इज एस्टॉपल, प्रोहिबिशन फ्रॉम प्रूविंग सर्टेन फैक्ट एंड क्लेमिंग सर्टेन प्रॉपर्टी टू स्टॉप अ पर्सन, दैट इज नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया, बट यहाँ पर ऑप्शन जब है आपके पास नन ऑफ द अबव, तो आप नन ऑफ द अबव लगा सकते हैं, डी इसका आंसर हो सकता था, बट डिलीट कर दिया गया। Next 26, 30-year-old document if produced before proper custody, the court shall presume its execution and may presume its execution. The court may presume, and provision कहाँ पर है, सेक्शन है ये 90। ये डॉक्यूमेंट के बारे में है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, नीचे अभी आएगा। नेक्स्ट 27, which of the following section is not included in section 8 of the Indian Evidence Act? मोटिव प्रिपरेशन है, कंडक्ट है, पीसीएम याद रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर पैरासीटामोल, तो आप ये ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। सेक्शन 8 पीसीएम है, तो इंटेंशन नहीं है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 28, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पब्लिक सर्वेंट शैल नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, दैट इज सेक्शन 124, बी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन 123 किसके लिए है, अफेयर्स ऑफ द स्टेट के लिए, ठीक है, और इसमें एक मैगजीम आती है सोलस पॉपुली सुप्रीम लैक्स, ये याद रखिए, ये मैगजीम बहुत पूछते हैं। फिर 125 किसके लिए है, इंफॉर्मेशन एज टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफेंस टू
वकील, ठीक है, मतलब प्रोफेशनल के साथ। ये भी किसके लिए है? प्रोफेशनल के लिए। तो जो प्रिविलेज कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें है ये। नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट डील विद क्रिमिनल मैटर, दैट इज सेक्शन 23। 25 किसके लिए है? पुलिस को कोई भी कन्फेशन दिया गया माना नहीं जाएगा। 53 क्या है? क्रिमिनल मैटर में जो आपका गुड कंडक्ट है वो रेलिवेंट है। 30 किसके लिए है? जॉइंट कन्फेशन के लिए, ठीक है, जॉइंट कन्फेशन लिख लीजिए। नेक्स्ट 30, द कोर्ट कैन प्रिज्यूम अबाउट द लीगैलिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट व्हेन इट इज़ 5 ईयर ओल्ड। देखा, कहा था ना, अभी आ जाएगा। द कोर्ट कैन प्रिज्यूम, में प्रिज्यूम है यहाँ पर। सेक्शन कौन सा है? 90A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट 31, द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो एक्सपर्ट ओपिनियन कितने? 45 में। सेकेंडरी एविडेंस कितने में है? 63 में। तो ये 62 में क्या है? प्राइमरी एविडेंस के बारे में बात की गई है। लीडिंग क्वेश्चन 141 में ही है, नंबर ऑफ रिटर्न 134 में ही है। तो इसमें नॉट करेक्ट कौन सा हुआ फिर? बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 32, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रिंसिपल रेसिस्टा इज गिवन। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं, दैट इज इन सेक्शन 6, डी इसका आंसर है। 24 में क्या है? PIT, जब उसको पीट देते हैं मतलब प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट, थ्रेट। जो पुलिस करके कोई कन्फेशन या कोई स्टेटमेंट लेगी तो वो माननी नहीं जाएगी। फिर 25 बता ही दिया, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी रेलिवेंट, ठीक है ना। 60 क्या है? ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। नेक्स्ट 33, इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशंस अबाउट ओरल एविडेंस है, सेकेंडरी है, डॉक्यूमेंट्री है, सर्कमस्टांशियल नहीं है, डी इसका आंसर रहेगा। और क्या नहीं, अगर हियर से भी लिखा हो ऑप्शन में तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट 34, व्हाट इज प्राइवेट डॉक्यूमेंट। प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहाँ पर मेंशन किया गया है? सेक्शन 75 में। तो इसका मतलब क्या हुआ? पब्लिक डॉक्यूमेंट कितने में है? दैट इन 74। तो ऑप्शंस क्या है? डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन ए फैमिली, फिर है ऑप्शन सीक्रेट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कस्टडी ऑफ प्राइवेट पर्सन, डॉक्यूमेंट अदर देन अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है दैट इज डी आंसर। ये भी ठीक है, बट ये आप मुझे कहूँगा कि कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था ये भी, तो इसको डिलीट नहीं किया। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 17, ए फोटोग्राफ कैन बी प्रूव्ड बाय एग्जामिनेशन ऑफ फोटोग्राफर एंड बाय प्रूविंग द नेगेटिव। इट वाज हेल्ड इन विच केस। तो कौन से केस में कहा गया था ये केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस भारत। ए इज द आंसर। नेक्स्ट है 18, सेक्शन 91 ऑफ एविडेंस एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए, ये बात करें सेक्शन 114 की, जहाँ पर कोर्ट में प्रिज्यूम सर्टेन फैक्ट्स। और देखिए वहाँ पर जो है ना क्लॉज बी में लिखा हुआ है अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, तो ये हो गया ठीक। फिर इज़ नॉट अनवर्दी, तो ये नहीं लिखा हुआ, तो ये हो गया गलत। फिर जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड, ये बिल्कुल ठीक है, ये है क्लॉज ई में। एंड दैट कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैव बीन फॉलोड इन पर्टिकुलर केसेस, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये है क्लॉज एफ में। इसमें गलत कौन सा हुआ फिर? बी इज द आंसर। Next 20, a person can become incompetent to testify on the following grounds: extreme old age, tender age, extreme old age, disease, whether of mind or body, any of the above ground। अब देखिए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कैन बिकम इनकॉम्पिटेंट, इसको हमने हाईलाइट करना है पहले। तो अब देखिए सेक्शन 118 कहता है हु मे टेस्टिफाई, और वहाँ पर लिखा हुआ है अनलेस द कोर्ट कंसिडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चन बाय टेंडर ईयर्स, ओल्ड एज और डिजीज़। तो तीनों ही वहाँ पर मेंशन है, तो एनी ऑफ द अबव ग्राउंड, डी इज़ द आंसर। किसी भी ग्राउंड पर वो इनकॉम्पिटेंट हो सकते हैं अगर वो रैशनल आंसर नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट 21, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन द टर्म्स ऑफ ऑफेंस और एट एनी सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस। ये देखिए कि रिपीट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली हमने पंजाब और यूपी का पेपर जो किया था, एंड ये जो है रिसेंट में ही पूछा गया है। आंसर क्या रहेगा इसमें? पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 22, द प्रोविजन रिगार्डिंग ओरल एविडेंस इज गिवन इन विच चैप्टर। देखिए चैप्टर पूछ लिया यहाँ पे, इट इज चैप्टर 4, बी इज द आंसर। और दो ही सेक्शन है इसमें, 59 एंड 60। चैप्टर 5 किसके लिए है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए, 61 से और
90A तक। उसके बाद फिर आता है सेक्शन 91 चैप्टर 6 में, और वो है 100 तक। सो फ्रेंड्स, ये थे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एविडेंस एक्ट फ्रॉम द ईयर 2003 टू 2022। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.